So, hi everyone. Good evening. And so today we have conducted this session in order to discuss with all of you the ethics paper 2025 of this year. And we also recently wrote a book called The Manual on Ethics, Integrity and Aptitude for UPSC and other state civil service examinations. And we studied the paper, looked at our book, and thought that this year's paper was not very different, but yeah, has quite of a trend that we would want to discuss with aspirants. And there were some questions which we also got on the ID of our publisher, Wiley, which is also there with us in the session. And those questions we have noted down separately. At the end of this session, हम उन questions को भी address करेंगे. But शुरुआत हम इस सेशन की करेंगे इस साल के एथिक्स पेपर के ट्रेंड के बारे में बात करके और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं ऑनगोइंग तो आप उनको इस सेशन में हमारे मैसेजेस में डाल सकते हैं. एट द एंड हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे. तो मैं वही आई वाज टेलिंग कि वी हैव एनालाइज्ड द होल पेपर ऑल फॉर GS 1 to 4 and particularly GS 4 in the for to compare with the last 10 years paper and how the paper is continuously evolving. So as I told, this paper ethics is a subject where it's not very static. So there is scope for improvement and there is scope for changes with every continuous year and all the and again it's not like 1 and 0, so it's not yes or no, it's always there is a middle thing which and you also have a lot of scope to bring yourself in this paper. Yeah. So with that introduction, coming to current trends, Sushti, what do you think this year's paper was? Yeah, so this year's paper, I believe one really big thing that we need to talk about is that the questions are even in the part A. So we all know कि इस पेपर के दो parts हैं, part A और part B. पार्ट ए जो रहता है उसमें हम जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंट जैसे अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, गवर्नेंस, इन सब के डेफिनेशन देने की बात होती है. और सेकंड पार्ट जो रहता है वो केस स्टडीज का रहता है. तो पार्ट ए में लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जिनमें करंट अफेयर्स का टच रहा है. A lot of times जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे you will see कि अरे ये तो GS3 का टॉपिक है या GS2 का टॉपिक है, but that is being asked in the context of GS4. उसमें ethical dilemmas पूछा है. तो this I believe is going to increase. I think ये रहेगा ही क्योंकि सारे ही पेपर्स में इस साल की हमें वो ट्रेंड देखने को मिला है. तो हम इसके लिए प्रेपरेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं उसकी भी बात अभी करिए. उसमें आई थिंक हमें ये करना चाहिए when we are preparing, keep an eye on the current affairs in the context of ethics. मतलब not just कि आप facts revise कर रहे हैं कि रशिया एंड यूक्रेन में वॉर हो रहा है या एनी जैसे अभी US टैरिफ्स को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, हाउ इंडिया रशिया एंड चाइना इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ. उसमें थोड़ा सा एथिकल भी देखिए. हाँ, so when it comes to current affairs it can be anything. Yes. Particularly आप current affairs को you will read from the perspective of GS 1 to 3 but आप कभी भी उसमें GS 4 के हिसाब से आप देखते नहीं हो. वहीं पे बहुत सारे चीज आपका मतलब लोगों का प्रिपरेशन में गलती होती है. करेक्ट. You should consider GS4 also a part of current affairs looking at this year's paper because हम part A देख रहे थे and also for that matter part B. So most of it are current affairs based or some or other news has come in the paper which has been recently discussed and most of it is based on current affairs only. So that's why we should always focus on current affairs and what's happening in the world and in and around you. And any big incident. So जैसे अभी there's a lot of discussion about क्या है in the Supreme Court's order for to the dog का जो rehabilitation का जो था तो उसमें you read it from the perspective of I know from society angle आप देखते हो GS1 में या उसमें ethics का angle ले सकते हैं. हाँ, तो वहाँ पे ethics का angle ले सकते हो. And also for that matter आपने बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन भी देखे होंगे, बहुत न्यूज़पेपर में भी आया था कि नॉर्थ कोरियन लीडर अभी जो when he was in China and President Putin was in China, so when they woke up, मतलब got up from the seat, they cleaned their chairs
तो उस एंगल में आप यू कैन थिंक ऑफ क्लोनिंग एंड इसका एथिक्स एंड जीन एडिटिंग एंड उसके बारे में एथिक्स, एनीथिंग कैन बी, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन कम विद अ एथिकल पर्सपेक्टिव. सो यू शुड हैव एन eye on each and every thing which is happening in and around you, which you are coming across every day in newspaper हो गया or any other media, तो which each and everybody are coming across. तो obviously आपका न्यूज़पेपर जो करंट एथिक्स पेपर जो सेट करने वाले वो भी सेम न्यूज़ पढ़ के ही आते हैं, उनके दिमाग में भी वही ethical questions अरेज होती है, they set the paper accordingly. So you have to keep an eye for ethics for that matter, and this is the trend which we are observing since last 3 to 4 years. So ethics is becoming much more current affair के based हो रहा है, and they are linking current affairs with the ethics paper, and it is becoming much more practical. Yeah. So more than theory, they are coming for practical application based questions. So which you have to or which you might have to apply in your work or in your personal life in the coming future. As a civil servant or as a general person, कि यानी मतलब आप जब भी आप इसका आपके लाइफ में कब यूज होगा, जब भी आगे यूज हो सकती है, वैसे आपका क्वेश्चन ही आप यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं. दिस इज द ट्रेंड विच वी हैव एनालाइज्ड एंड वी आर अगेन आपको अलर्ट कर रहा है कि यू हैव टू लुक एट करंट अफेयर फ्रॉम एथिक्स पर्सपेक्टिव एज वेल, प्रिपेयर एंड नोट्स of all the issues which are going on. GS 1 2 3 4 2 3 का तो आप करते ही हो, आप will note down all the important points, also note down the ethical issues involved or ethical आपका angles involved in each and every news, which will be very useful to you in the coming year's examination. ठीक है, I think that's enough for the introduction. Let's dive into the paper now. So we are looking at section A first. The first question that was about social media and how it has revolutionized our way of communication and interaction. जो हमारे यूपीएससी एथिक्स के सिलेबस के इनिशियल चैप्टर्स हैं, यूनिट 1 है, उसमें वी टॉक अबाउट अप्लाइड एथिक्स, एंड इवन इन आवर बुक वी हैव डिस्कस्ड अप्लाइड एथिक्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एथिक्स. टेक्नोलॉजी एथिक्स में हमने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की है, बी इट बायोटेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया. तो वहीं से उस तरीके का क्वेश्चन है कि what ethical issues and challenges a person faces in that realm of social media. तो applied ethics का question है, it's very much बहुत और भी दूसरे applications की discussion होता है, but this is a lot in news, तो more or less on the expected lines है. Next is constitutional morality. इस बार की UPSC के questions, if I was seeing the GS2 paper, वहाँ पे भी they have asked constitutional morality, even in this GS4 they have asked, but in this they have linked it to so if you could read the question, examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. So the concept of constitutional morality has been connected to how a civil servant is able to work in a manner that he promotes good governance and accountability. तो ये जो different concepts हैं governance के, accountability के, इस concept को आप सिविल सर्वेंट के लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन इन विच मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड एट द सेम टाइम इन वन क्वेश्चन. सो फॉर दिस आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछा है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या व्हाट इज गवर्नेंस या व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, जो पहले पूछा जाता था. 3-4 कॉन्सेप्ट को क्लब किया है. पहले जब when we were writing the exam, I still remember this question was to be framed, they would have asked to define constitutional morality or define accountability in public administration, give 2 examples, and again मतलब what do you think, मतलब how is it important for a public servant. तो ऐसे it used to be simple theoretical based questions, but now they have started कि ये लोग यूपीएससी ऐसे करने लगे हैं कि वो इसको लिंक करने लगे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को. तो हाउ टू राइट दिस आंसर कि उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर ले. हर क्वेश्चन में बेसिक हम बता देंगे कि आपको इसको कैसे अप्रोच करना है. जैसे पहले क्वेश्चन में सृष्टि जैसे शी हैज टोल्ड कि सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा, तो उसमें उसको आप लिंक करते हुए हाउ व्हाट आर द एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस व्हिच माइट कम अक्रॉस. एथिकल इश्यू चैलेंजेस आप if you have इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा, you list down all the ethical issues, all the ethical concepts. एक लिस्ट आपके पास दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए, तो आपके दिमाग में you should आपको याद करके आना चाहिए एग्जाम में. You just run across all the issues which might have been affected through this, and you will come up with at least 8 to 10 such issues which are related to this question. The first question is not that
difficult, it's a very easy question, so which you can attempt. Second question में to explain how to answer this question, आपको यहाँ पे you have to imagine yourself as a public servant. तो आपको एक constitutional morality का significance बताना है in promoting good governance and ensuring accountability. So there are two things which has to be promoted using constitutional morality. तो आप उसमें आपका आंसर ऐसे फ्रेम करना है कि आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर ए पब्लिक सर्वेंट, एंड उससे कैसे आपका गुड गवर्नेंस एंड आल्सो अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो. इसमें एंगल में आप दो आप ले सकते हो, पहले आप गुड गवर्नेंस का ले सकते हो, देन अकाउंटेबिलिटी. दोनों अलग अलग एथिकल कॉन्सेप्ट है, दोनों को अलग अलग लेके हुए हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसमें आपको प्रमोट करने में हेल्प करती है करके आप लिख के दोनों में आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो योर ओन एग्जाम्पल विच यू वुड हैव रेड समवेयर कि आप इंडिविजुअल अगेन एग्जाम्पल्स में जनरली आपको बताना चाहूंगा. तो बुक में जो लिखा है, कोई भी बुक में आप कोई कई लेक्सिकॉन में उठा लिया, कहीं और से आप नोट से उठा लिया, वो यहाँ पे लिख दिया, वैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं. यू हैव टू कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल फॉर एवरी क्वेश्चन. अगेन इसमें भी दो आपने डिवाइड कर लिया, तो एक पेज में एक पॉइंट में लिख दिया, दूसरे में दूसरे पॉइंट पे लिखा, और दोनों में एक एक एग्जाम्पल यू रोट. ठीक है. Next, we'll move forward. Next question is about Karl von Clausewitz once said, "What is the diplomacy by other means? Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict." तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो हमारा जो एक यूनिट है चैप्टर 11, वो है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग. तो उससे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड इवन इन आवर बुक वी हैव टॉक्ड अबाउट टेरिटोरियल वॉर, एग्रेशन, हाउ द एथिकल इश्यूज कम अप इन दिस वॉर सेक्शन, एंड उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है. आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस. नेक्स्ट इज कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड. एग्जामिन द एथिकल डायलेमास related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country. तो बहुत सारे keywords लग रहे हैं पहली बार में पढ़ने में. Always remember, read the question twice, underline the keywords that are present in the question. यहाँ पे we're talking about environmental clearance, we're talking about developmental projects, and we're talking about ecologically sensitive border areas of the country. उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के क्या एथिकल कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं. बहुत सारे रिसेंटली न्यूज में ये सब चीजें थी. नॉर्थ ईस्ट एरियाज में है, फिर एरियाज बॉर्डर, जैसे उत्तराखंड वाला एरिया है, एरियाज बॉर्डरिंग नेपाल भूटान, वो वाले पूरे सेक्शन में भी ये वाली चीजें आई हैं. उस पे उसी से लेकर के आई थिंक क्वेश्चन फ्रेम. दिस इज बेसिकली फ्रेम्ड ऑन मेनली आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, एंड ऑल्सो बॉर्डर एरियाज जहाँ पे रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है, मेनली फॉर आपका नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. जो बॉर्डर एरियाज में हमारा मेनली रोड्स हो गया, आपका अदर ब्रिजेस एंड ऑल दिस इंफ्रा डेवलपमेंट जो हो रही है, उसको लेके बात हुआ है. आपको अगेन फर्स्ट वर्ड में ही दे हैव टोल्ड कि नेशनल सिक्योरिटी आपको दिमाग में रखते हुए आप सारे जो एथिकल डायलेमास को आपको आंसर टच करना है. यहाँ पे एज इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन की बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट टच ईच एंड एवरी टॉपिक्स, जस्ट हैव टू मेंशन अबाउट ईच एंड एवरी. जैसे आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो देने, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एंगल से आपको बॉर्डर एरियाज के बारे में बात करना है. अगेन यू जस्ट हैव टू टच ईच एंड एवरी इशू. आप कर सकते हैं इसमें भी. तो बट वही क्वेश्चन पढ़ते ही आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने जैसे लगेगा दिस क्वेश्चन. तो बट वंस अगेन इफ यू रीड इट very slowly and if you try to understand it, it's a very easy question, and you have a lot of current affairs going on around this topic. Right. Next जो है questions 3, they are typical questions जो हमें quotations दे दिए जाते हैं and we are made to answer it. So question ये रहता है, what do each of these quotations convey to you in the present context? तो पहला quotation हम लेते हैं, those who in trouble untroubled are will trouble itself. This is by Thiruvalluvar. So, ये जो कोटेशन है ये पढ़ने में इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. इनिशियल नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ने में भी कंफ्यूजिंग लग रहा है. एंड दिस वाज डिस्कस्ड अ लॉट ऑन आपका टेलीग्राम एंड सोशल मीडिया एज वेल. बहुत सारे क्वेश्चन के बाद बहुत डिस्कस हुआ इसके बारे में कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ गया. बट इट इज अगेन इट्स अ वेरी सिंपल कोट. इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड रीड इट इन डिटेल, तो इट्स अ वेरी सिंपल कोट. Again, Sushti, if you can explain what exactly this quote means. Yeah. So, those who in trouble untroubled are, मतलब जो लोग ट्रबल में रहते हुए अनट्रबल्ड रहते हैं.
those who are in trouble but still remain untroubled will trouble itself. So अगर हमारे लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, we are facing some problems, तो उस सिचुएशन में भी if we maintain our calm, if we maintain the equanimity, if we understand that life is a combination of both positives, negatives, there will be success, there will be failure, there will be challenges, there will be good things. अगर हम उस एडवर्सिटी में भी अनट्रबल्ड रहते हैं तो हम ट्रबल को भी ट्रबल कर सकते हैं. ये बस कहने की बात है, असली में इसका मतलब ये है कि ट्रबल हमारा बहुत कुछ उसमें बिगाड़ नहीं पाएगी. We should be able to maintain equanimity and this is the real truth of life. as हम लोग बात भी करते हैं कि हर तरीके के एक्सपीरियंसेस हमको आते हैं, there will be ups and there will be downs. So उन सभी situations में हमें untroubled रहना है. हमें ये समझना है कि all of this is a transient phase. Neither the happy times are forever, nor the sad times are forever. बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसीलिए हम एडवर्स सिचुएशन में भी हमारा काम मेंटेन करना है, हमारा इक्वानिमिटी मेंटेन करना है, एंड दैट वे वी विल बी एबल टू सेल थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ. इसमें एक और इसमें अगेन सो आपको कोड तो आप लिख लेते हो कि व्हाट डज इट मीन, बट आपको फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन पढ़ना है. गिवन अबव आर 3 quotations of great thinkers, what do each of these quotation convey to you in the present context? Again आपको यहाँ पे आप इससे और what are you getting out of it or what are you understanding out of this quotation? Again it is very यहाँ पे individual thought they want thought process they want out of you कि they don't want any क्या है definitions or something like this. तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस कोट से, तो आप वो लिखिएगा एंड उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट से आपको लिंक करना है. आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट से कैसे कर सकते हो? पहले कोट को आपने लिख लिया, कोट लिखा, उस कोट यू विल डिटेल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट कोट, देन यू कम फॉर एग्जांपल्स. यहाँ पे एटलीस्ट 2 एग्जांपल लिखना है एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो आपको एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा रिलेटेड टू दिस, वैसे आपको 2 एग्जांपल इसमें लिख के आप इसको कनेक्ट कर सकते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में. So this is very important when you are answering this question. All these 3 quotes to connect it to the present context. That is the most important part यहाँ पे, and you can do it with the examples and again also current affairs part यहाँ पे फिर से आपका it will be important. ठीक है अर्जुन, can you take the next quote? The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes, by William James. Again this quote, what does it mean? I will only tell from my perspective what does it mean to me. If I am writing this exam में अगर ये एग्जाम लिख रहा होता तो मुझे क्या इसमें समझ में आया कि मेरे हिसाब से मतलब फॉर मी दिस इज लाइक कि हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा जो डिस्कवरी है, जो चेंजेस है और दी हाउ दिस जनरेशन हैज टेकन मतलब थिंग्स अराउंड देम कि आप कैसे मतलब उसको परसीव किया है. तो दिस होल ह्यूमन बीइंग का हमारा जनरेशन का, तो इट इज दैट कि वी कैन ऑल्टर आवर लाइफ इफ वी ऑल्टर आवर एटीट्यूड्स. एटीट्यूड एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एटीट्यूड. इट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग और ऐसे यू नो ऑल द डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड. तो फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे तो इसमें कैसे ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे आप इसको ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आजकल आप यू लाइक इफ आई हैव टू राइट एग्जांपल इमीडिएटली, so we are coming across so many deaths out of cardiac arrest. तो every day and other आप देखते हो कि कई जिम कर रहे हैं, कोई देन कोई कहीं पे भाग रहा है, कहीं पे somebody is playing, suddenly they collapse and they die out of heart attack. Right. So like that is like mainly because something or other, some precursor will be there, like it might be obesity or it might be some kind of हेल्थ इश्यू, कोलेस्ट्रॉल इश्यू होती है, देन द हार्ट ब्लॉक हुआ होगा पहले. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल इश्यूज. तो इफ वी कैन ऑल्टर दैट, इफ माय एटीट्यूड, इफ आई एम द पर्सन, इफ आई कैन चेंज माय एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड एंड आल्सो टुवर्ड्स एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इफ आई चेंज दिस एटीट्यूड, जैसे स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज एंड फूड, तो फूड हैबिट्स, तो इस तीनों के बारे में मेरा एटीट्यूड है. जैसे I will not take fried foods, not artificial sweeteners, no kind of sweets, and I will exercise daily for a hour,
1 hour per day, and I will live a stress-free life, and I will meditate. So if my attitude towards these three things, if it changes, then it will change my life. So my whole life and my life to when it comes to health perspective, it will change. This is a very common example which you can quote in the present context. Again, so this comes to personal life. Again, professional life में भी आप कुछ और आप इसमें लेके आ सकते हो. इसमें दो एंगल लेके आ सकते हो. पर्सनल लाइफ में कैसे आपका एटीट्यूड चेंज से आपका लाइफ चेंज होगी, एंड कैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपका एटीट्यूड चेंज से आपका लाइफ चेंज होगी. ऐसे भी सम एग्जांपल इफ यू कैन कम अप विद इट एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस कोट. ठीक है. Right, moving on to the next question. For any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework. Now, justify this statement with suitable examples. So, इसमें social re-engineering की बात की है and welfare schemes की बात की है. Plus, they have told कि you have to justify with examples. तो when they have told कि examples use करना है, तो 1 or 2 schemes के हम examples इसमें ले सकते हैं. जैसे एक टॉप ऑफ द हेड जो मेरे दिमाग में हमारे दिमाग में आ रहा था डिस्कसिंग और स्वच्छ भारत अभियान. सो दैट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्कीम इन विच द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट अ बिहेवियरल चेंज. हम चाह रहे थे कि जो ओपन डेफिकेशन हमारे कंट्री में होता है, जो बाहर जो टॉयलेट्स घर में नहीं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या फिर जो काइंड ऑफ क्लेanलीनेस हाइजीन उतना मेंटेन नहीं होता है, वो बिहेवियरल चेंज पॉजिटिव हमारे लोगों में कैसे लाया जाए. सो वो वेलफेयर स्कीम जो थी उसमें यहाँ पे बताया गया सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो रीजन इसमें यूज करके, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें यूज करके कैसे उस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, उस पर डिस्कशन हो सकता है. एग्जाम उसके बारे में बात हो सकती है इस आंसर में. सेकेंड जो एक आधा हम स्कीम और ले सकते हैं, वो ले सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें वी वर ट्राइंग टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. उसी का एक पार्ट था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें you are saving money for the girl child, and at the end of 18 years you have a 1 lakh or more amount for the girl child for their education. This is longer term में this will help delay the age of marriage for the girl and promote education and promote women empowerment. तो इन सब को इम्प्लीमेंट करने में कैसे लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सिविल सर्वेंट शुड यूज देयर रीजन, शुड यूज देयर क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्टेट में हम अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं. हर स्टेट में एटीट्यूड, ये जो सोशल एटीट्यूड्स रहते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट रहते हैं, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं. तो अगर हम एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेकर के काम करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, रीजन को ध्यान में रखते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट यू आर एबल टू एनालाइज डिफरेंट थिंग्स. क्या क्या सिचुएशन है, इसमें क्या सही रहेगा, क्या स्टेक होल्डर्स से बात करके क्या बेटर हम यहाँ पे कर सकते हैं. इस टाइप के पूरे एप्लीकेशन को देखते हुए हम इसको आंसर करना था. Next is what are major teachings of Mahavir, explain their relevance. This is a very factual question. आपने पढ़ा है महावीर जी का जो उनका टीचिंग्स है, उसके बारे में कंटेम्प्रेरी वर्ड से आप कनेक्ट करके आप कर सकते हो. दिस इज रेगुलर हमारे, as I told during when we were writing exam, ऐसे क्वेश्चन आता था, which through which आप अगर फैक्चुअल जानते हो तो उनको आप आराम से with a couple of examples आप एक्सप्लेन कर पाते हैं. Coming to next question 5A, one who is devoted to one's duty at its highest perfection in life, analyze the statement with reference to sense of responsibility and personal fulfillment as a civil servant. So, इसमें devotion to one's duty, attaining highest perfection in life, इस पे बात हो रही है. और question जो हम बात करते हैं ना कि एक there is a statement and the second part is a question. Question sentence क्या है? Analyze this statement with reference to सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज अ सिविल सर्वेंट. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, हमने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में बात की थी. यहाँ पे भी आई थिंक जो भी डिवोशन ऑफ ड्यूटी बात हो रही है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में बात कर सकते हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप कितना डिवोटेड है, कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर वर्क. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पंक्चुअलिटी, वेदर और नॉट यू गोइंग ऑन टाइम. Second, whether or not you are working hard enough, you are able to give time to your people who are coming to meet you. Whether you are able to do your field visits, going to the field, understanding the real life case scenarios of how people are living. So, all of these things come in the devotion to duty, how dedicated you are. And second जो part है इसका personal fulfillment, वो आता है कि आप कितना पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों चीजों से आ सकता है. आप अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं एंड एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे आई वाज एबल टू ब्रिंग सम चेंज इन सम पर्सन्स लाइफ, तो दैट आल्सो ब्रिंग्स पर्सनल फुलफिलमेंट. सेकेंडली, हमारे पर्सनल लाइफ में
हमारी फैमिली है, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर हम उनका ध्यान अच्छे से रख पा रहे हैं, उनको खुश कर पा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू पर्सनल फुलफिलमेंट. एंड आई थिंक डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी यहाँ पे केवल एज अ सिविल सर्वेंट नहीं, बल्कि ड्यूटी एज अ पर्सन. सिविल सर्वेंट भी एक पर्सन ही है, उसके लिए भी उसकी फैमिली को टाइम देना या फिर इस तरीके का टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली पेरेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी फॉर द पर्सन which will lead to personal fulfillment. वो एक तो एंगल आप वो एक एंगल आप दे सकते हैं जस्ट अपनी वन जगह. पॉइंट आप ऐड हाँ. कर सकते हो टू ब्रिंग इन डिफरेंट आपका जो डायमेंशंस इनटू द आंसर. Right. Okay. Let's move ahead. Next question is 5B. To achieve holistic developmental goal, a civil servant acts as an enabler and active facilitator of growth rather than a regulator. What specific measures will you suggest to achieve this goal? Again, this is a आपको लगता है कि this is a very difficult question, but if you have read the qualities of civil servant and what are the मतलब expected qualities जो आपका रहना चाहिए and what are the measures which you can take to better the governance, good governance chapter में, ये दोनों में if you had read तो आपको बहुत सारे इसमें measures, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे तो बहुत सारे मेजर्स जो है आपको आएगा, जैसे रेड टेपिज्म आपको खत्म करना है, आपको बहुत लाइक यू वुड हैव रेड अबाउट कोर्ट, सीवीसी कोर्ट, 4 C's जो है सीबीआई, सीवीसी, कोर्ट एंड आपका एक और है सीएजी. हाँ, ऑल दिस 4 C's के बारे में आपने पढ़ा होगा. हाउ टू इंसुलेट द सिविल सर्वेंट्स हु take decisions in public good. So उसके बारे में मतलब you would have read about that. Again, all these things are थोड़ा factual है, तो if you had read about good governance and also qualities of civil servant, you can answer this question. So it's a factual question. Then उसके बाद next question, it is said that for an ethical work culture, there should be a code of ethics in place in every organization to ensure value-based, competence-based work culture. What suitable measures? Again, this is also work culture based. ये chapter 16 जो है हमारा यूपीएससी सिलेबस का, it is about work culture. उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में in our book also work culture के लिए हम बहुत सारे dimensions हमने बात की है, बहुत सारे examples हमने दिए हैं, and this question can be easily answered through that. Next, India is an emerging economic power of the world, as it has recently secured status of 4th largest economy of the world. However, it has been observed that in some sectors, allotted funds remain either underutilized or misutilized. What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of 3rd largest economy of world in near future? So again, this is फंड यूटिलाइजेशन के बारे में, पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन के बारे में चैप्टर है, तो यू हैड रेड अबाउट दैट. तो अगेन व्हाट इज अंडर यूटिलाइजेशन, व्हाट इज मिस यूटिलाइजेशन, पहले यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन. सो देन यू विल राइट अबाउट द मेजर्स, आप जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एंड ऑल्सो लीकेज स्टॉप करने के लिए, तो आप मेजर सजेस्ट करेंगे. एंड में आपका जो क्लोजिंग में आप ऑल दिस आपका जो मेजर्स करने से आपका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो पाएगा करके आप लिखेंगे. तो अगेन दिस इज बुक में वी हैव गिवन 2 पेज कंप्लीट, 3 पेज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू यूज, व्हाट इज मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन एंड आपका माल यूटिलाइजेशन. तो ऐसे 3-4 जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है विद मेजर्स व्हिच कैन बी यूज्ड to tackle this aspect we have explained. Again, this is again a factual question. If you had read about public funds to public fund management, then you could have easily answered this question. ठीक है, I think that brings us to the part section B of the paper. Section B में we will not take all the questions. So because इस बार का again trend के बारे में बात करें, तो इस बार का trend ऐसे रहा है कि questions in section B are pretty easy and relatively easy and not very lengthy questions, so that आपका क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा एंड बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एंड जनरली दे हैव लिंक्ड इट विद करंट अफेयर्स. तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विजय वाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट इन द मंथ ऑफ अगस्त हेवी रेन्स. दिस इज अबाउट क्लाउड बर्स्ट. तो क्लाउड बर्स्ट रिसेंटली आप जब सब जानते हैं उत्तराखंड में हुआ है, और अभी रिसेंटली जो हुआ है अगस्त में क्लाउड बर्स्ट, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो उस इफ यू हैड रेड दैट न्यूज़पेपर एंड इफ यू हैड रेड अबाउट कि हाउ टू what could have been done to reduce the impact and what are the issues, ethical issues के बारे में एक बड़ा editorial 2-3 आया है. तो if you had read about it, so you could have easily attempted the questions. What are the options available, what are the ethical dilemmas, options को आपको evaluate करना,
यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने पूछा है, which is a very usual kind of an ethical dilemma, कि उनकी mother is sick and he is working in a very far area and mother is I think in Kerala, that's like distance, physical distance बहुत ज़्यादा है, और कोई sister भी उनकी US में ऐसा बताया। So this is a very classic dilemma, personal versus professional ethics, कि आप अपने personal relations और personal जो आपकी mama है, which is the closest, उनको कैसे आप इस situation को deal करेंगे। This is a very classic case. Kind of a it's a very classic easy case. आपको you can come up with 3-4 options and you will have to choose what is right with public service के हिसाब से, उस एंगल से what is right you will have to choose. Again it is very difficult to choose यहाँ पे, but again you have classic आपके examples आ जाएगा, dilemmas आ जाएगा, you will right. This is not a difficult question. So coming to next question, direct DEPSP के बारे में बात किया गया, रोटी कपड़ा मकान and इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के उसको फॉरेस्ट लैंड क्लियर करके वहां पे उनको हाउसिंग एक प्रोजेक्ट बनाने के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज करने के बारे में है। एंड अगेन दे हैव गिवन व्हाट आर द इश्यूज, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, माइक्रो क्लाइमेट, रेनफॉल अफेक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होगा, ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटीज अफेक्ट होंगे और व्हीकल बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज दे हैव गिवन। एंड अगेन नेक्स्ट उसके बाद में व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो भी उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। अगेन इसमें क्लियर है तो यू हैव टू टेक द स्टैंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, तो दैट इज ऑलवेज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप उसी एंगल से आपको सोचना है। यू कैन कम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशंस लाइक आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाना, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स AHP अगर आपने पढ़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें AHP प्रोजेक्ट्स आती है जहाँ पे मल्टी बिल्डिंग्स बन जाती है इन कंजेस्टेड एरियाज, तो वैसे आप करके EWS सेक्शन को आप दे सकते हैं। तो एंड ऑलरेडी अवेलेबल लैंड जो है फैलो लैंड हो सकती है एंड अदर काइंड ऑफ लैंड व्हिच आर फॉर कम्युनिटी यूज मे बी, एंड यू कैन एक्वायर लैंड, प्राइवेट लैंड को आप एक्वायर करके भी आप कर सकते हो, यू नीड नॉट अफेक्ट द फॉरेस्ट फॉर दैट। तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपका सबका इसमें कौन सा स्टैंड लेना है वो आ जाएगा। तो ethical issues, again you would have read a lot of things about ecology and environmental ethics, तो again वहाँ पे आपका पूरा इसमें points मिल जाती है। Policy interventions, again as I mentioned कि ऐसे ये सब आप stands ले सकते हो। Coming to third question, this is a classic question of आपका क्या है? This is about this guy Subhash, PWD secretary है, and they have told कि how he is close to a minister and how there is political interaction बहुत ज़्यादा, and उनका जो बच्चा है he is also aiming to be into real estate business, and the son is saying कि father I need to know how the future of the real estate is coming so that I can invest there and I can make more money. And there is another person who's there, he's the minister's nephew, and the minister has also told you that आपको इनका भी ख्याल रखना है, इनके भी business interests का ख्याल रखना है। So इसके कुछ ethical issues जो बुक में हमने mention किए हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि ethical issues और ethical dilemmas दो अलग-अलग चीजें होती हैं। Ethical issues मतलब कुछ specific issues create हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे conflict of interest है, पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमारा बच्चा भी अच्छा करे, और प्रोफेशनल इंटरेस्ट इसमें इंटेग्रिटी है, तो ये एक एथिकल इशू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक इंसाइडर ट्रेडिंग करके एथिकल इशू होता है, जिसमें इफ यू हैव इंसाइडर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड यू आर गिविंग इट टू द आउटसाइड पर्सन who are not eligible to know that information or fact, that is called insider trading. That is an ethical issue here. Then partiality, injustice is there. Political interference is an ethical issue. Main is integrity, personal integrity again. Yes. Then nepotism, favoritism. ऐसे बहुत सारे issues है इसमें. This is a classic case. अगर आप theory जानते हो, you can link so many concepts with this. So this is again a easy case. Again, critical examine the options available. Which of the above would be appropriate? You can develop different options, and finally you can choose the one where you don't share the information. That would be the ideal option to choose. Next question. Next is Rajesh, who's a Group A officer, and he is going to be evaluated in the ACRs, which is the annual reports, and unke senior is recommending
to No, buy there is certain, some, there are some computer related stationery which they need to buy, and the जनरल फाइनेंशियल रूल्स जनरली रेकमेंड कि अगर आप इतने 30-40 लाख के ऊपर आपको करना है तो आपको एक सीनियर का वो लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. But the general office practice is that you break the tender into small this thing, so that you don't have to take the permission of the senior and you do it at your end, which actually violates the general financial rules also. So हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा बहुत अगर आपने यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स पढ़ा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता रहेगा. दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर ऑप्शंस, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द रूल्स, स्पेशली इन फाइनेंशियल नेचर, क्योंकि अगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है तो फिर देयर कुड बी सम इश्यूज लीडिंग अप टू यू ऑल्सो. सो ये सब आप ये डिफरेंट एथिकल इश्यूज हैं जिनकी ऑप्शंस हम डेवलप करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगेन ऑल दिस केस स्टडीज जो है, तो अगर हमारे मतलब the ones who have read our book, तो इसके बारे में similar case studies we have given in our book. We have given 50 case studies related to different we have divided into different topics. जैसे वर्क कल्चर का जब बात आ गया, तो वर्क कल्चर में आपका यहाँ पे we have discussed this kind of cases जहाँ पे आपका CR हो गया या आपका promotion depends on your boss and the boss expects some favor out of you, ऐसे cases we have discussed with there. तो then again corruption का जो इसमें we have secret about this insider trading हो गया, वो सारी चीज we have discussed. तो again development versus environment, we have a separate environment versus development, उसमें भी we have 8 to 10 case studies. Yes. So then we have deputy commissioner था, personal जो issues है जब miscellaneous में भी we have added. तो and also marginalized sections में भी we have added certain things, तो उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो. So then next question is मनरेगा. They have explained what is a मनरेगा scheme के बारे में they have explained कि what are the उसके अंदर क्या क्या है, provisions क्या क्या है उसके बारे में बताया, और आपको बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हो एंड आपको मॉनिटर करने का ये है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपके एक पंचायत में आपके प्रीडिसेसर जो है हैज मिसमैनेज्ड द प्रोग्राम एंड they have listed down certain things which are being mismanaged or which are the issues which has been come to your notice. तो उसके बारे में किया है, जैसे मनी नॉट डिस्बर्स्ड टू एक्चुअल जॉब सीकर्स, मस्टर रोल नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन, मिसमैच बिटवीन वर्क डन पेमेंट मेड, फिक्टिशियस पर्सन को पेमेंट कर लिया, जॉब कार्ड वालों को काम नहीं दिया, तो साइफनिंग ऑफ फंड्स, अप्रूव्ड वर्क दैट नेवर एग्जिस्टेड. तो ऐसे आपका इश्यूज उन्होंने कोट किया, जो अगेन दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल वेयर वी अगेन स्ट्रेस कि आपको एडिटोरियल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. मनरेगा के बारे में हर साल हर पेपर में कम से कम 8-10 आपका एडिटोरियल आती है. उसमें दे डिस्कस ऑल दिस प्रोविजंस, ऑल दिस नेगेटिव्स, उसको कैसे गवर्नमेंट ने अगर एड्रेस किया तो कैसे किया है, अगर नहीं किया है तो कैसे करना है. तो वो अगर इफ यू हैड रेड वन एडिटोरियल आल्सो यू वुड नो. जैसे पहला वाला दे हैव टोल्ड मनी नॉट डिस्बर्स्ड टू एक्चुअल जॉब सीकर्स. आजकल आपका पूरा ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट आधार लिंक्ड है, तो ऐसे एक्चुअल जॉब सीकर्स के अलावा आपको एक्चुअल जिनका आपका मस्टर भरते हैं उसके अलावा किसी और को आप पेमेंट नहीं कर सकते. तो अगेन दिस इज अ थिंग विच यू शुड बी नोइंग. तो if you know this you will answer this. Muster rolls not properly maintained, आजकल ई मस्टर रोल है, तो वर्क डन पेमेंट्स मेड में भी आप आजकल पूरा ऑनलाइन सिस्टम है पेमेंट का, तो यू कैन नॉट दैट आल्सो यू कैन नॉट मतलब मिसमैनेज. फिक्टिशियस पर्सन का रहते ही नहीं, एज आई टोल्ड केवाईसी हुआ है, सबका केवाईसी हुआ है. तो जॉब कार्ड्स वर गिवन विदाउट लुकिंग इनटू नीड ऑफ द पर्सन. तो दिस इज समवेयर वेयर अगेन इनिशिएटिव सारे इसमें. So if you know what has been done already in this scheme, this is a very successful scheme when it comes to reducing corruption and bringing in transparency. Mein मनरेगा is a very successful scheme. If you had read a couple of editorials, so you would have answered all these things. This has already been addressed by the government. Government ने क्या क्या किया है already, तो उसको ही आपको यहाँ पे लिखना है. What actions would you initiate to solve the various issues listed question के लिए. So if you know what has been done already, you can write that. तो ऐसे क्वेश्चन है. दिस इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इफ यू डोंट नो आल्सो यू कैन थिंक अबाउट कि हर पॉइंट में मतलब इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिजिटलाइज दिस एंड हाउ टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस. आप जो सोच के इसमें कर सकते हैं. इट्स नॉट अ
very difficult question. But it is unique in the sense that case study में completely एक particular scheme के बारे में पूछा है. So that, as Arjun has told before, I would highlight again कि keep an eye on the articles. They are very important. Newspaper articles में ये सब चीजें बहुत commonly cover की जाती हैं. So then coming to the next last question, Ashok is divisional commissioner of one of the border state. वहाँ पे there is a civil conflict in the neighboring country. Military has taken over. There is rebel groups which are opposing this. Then there are displaced people who want to enter your country to the border, and you are the divisional commissioner there. And there are women and children who are trying to enter. Then you get a news about that, and again, what will you do at that particular instance? And you know that there are 10 soldiers also who are trying to cross over with these people. वो भी एक एंगल है, and you are not able to reach your higher ups. तो ये भी एक एंगल है. तो ये देखिए, दिस इज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो एथिकल इश्यूज है, जो मेनली आपका रोहिंग्या का जो चल रहा है, एंड नॉर्थ ईस्ट में जो इश्यूज चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज, इफ यू हैव रेड दैट इन डिटेल, तो आपका ये सारे एथिकल इश्यूज वहाँ पे डिस्कस हुआ होता है. अगेन डायलेमास डिस्कस हुआ recent, ये बहुत recent कोई मूवी में we have come across this scene also. तो I think it is सैम बहादुर जो मूवी आया था सैम मानिकशा सर के बारे में, तो शायद उस मूवी में इसका शायद डिस्कस हुआ है. मतलब सम एक सीन है वेरी सिमिलर सीनरी वहाँ पे एक शूट किया हुआ है. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे लोग कैसे केस स्टडी बना सकते हैं. एक मूवी से लेके बना सकते हैं, तो जो चल रहा है उससे बना सकते हैं, या खुद सोच के बना सकते हैं कि भाई कैसे हो सकते हैं, क्या क्या आपका इश्यूज. यू जस्ट हैव टू पिक अ टॉपिक. बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या इशू बन सकती है, एक केस स्टडी बना ली. तो ऐसे मतलब वी हैव गिवन 50 केस स्टडीज. ये सारे सब काइंड ऑफ केस स्टडीज वी हैव अड्रेस्ड इन आवर पेपर. तो दिस इज अगेन, यहाँ पे आपको क्या स्टैंड लेना है वो पूछा गया. ऑप्शंस अवेलेबल, एथिकल एंड लीगल डायलेमास क्या है आपके सामने, तो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन बाय बॉर्डर पुलिस. अभी आजकल के सिचुएशन में करके उन्होंने मांगे एक नया एंगल उन्होंने जोड़ा है. तो इसके बारे में यू वांट टू टेल मी? नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल. एथिकल डायलेमास भाई ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, विमेन है, चिल्ड्रन है, एंड देन दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन. So as we discussed the whole paper, I believe it was a healthy combination of current affairs based. Case studies में भी हमें बहुत सारा current affairs देखने को मिला, and part A में तो काफी सारे questions थे. There was some when we announced the live session, कुछ questions हमने invite किए थे, and we have a list of questions which we would want to discuss now. First question that we had was how to and how many thinkers should I prepare to write an attempt. सो थिंकर्स की बात आती है. एक चीज इसमें हमने जो बात की थी शुरू में कि पार्ट ए वाज अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड अबाउट थिंकर्स. तो एक बहुत लिमिटेड सेक्शन ऑफ एथिक्स है जिसमें कोर एथिक्स हम पढ़ते हैं कि डिओन्टोलॉजी क्या है, अरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स क्या है, कन्फ्यूशियस का क्या कॉन्सेप्ट है ऑन एथिक्स. तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कभी अभी तक नहीं पूछे हैं यूपीएससी ने, लेकिन वो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि एथिकल थ्योरीज कहाँ से आती हैं. एंड फॉर दैट रीजन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल थ्योरीज एंड एथिकल थिंकर्स इज असेंशियल. तो जैसे हमारे बुक में भी एक ब्रीफली चैप्टर, हमने जो ओपनिंग चैप्टर है वो उसी के बारे में दिया है, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि एथिकल थ्योरीज कहाँ से और कैसे डेवलप होती हैं. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. थिंकर्स डायरेक्टली उनके फिलोसफीज नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो आपके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें उन थिंकर्स से रिलेटेड आपको कोटेशन पूछा जा सकता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस. हमने थिंकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम इंडिया एंड रिफॉर्मर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उनके बारे में भी उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हु दे वर एंड व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट आर देयर वैल्यूज, वो हमने 2-3 चैप्टर्स में कवर किया है इन आवर बुक. दैट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फिलोसफीज. उसके साथ में आप उनके बारे में जो उनके जो कोटेशंस हैं उनको पढ़ सकते हैं. दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर द एक्चुअल पेपर. How to deal with case studies? What are the keywords we can use for case studies? So again, when we were discussing about case studies just some time back, तो case study के ऐसे situation हैं जो you might have to face when you are as a civil servant or as a common man as well. So you might have to face that scenario, and you will have to come across
that scenario, and you will have to come out of that scenario with the ethical decision making. So ऐसे आपको इसको बताया जाता है कि केस स्टडी. So how to deal with case studies? केस स्टडीज आपको how to deal in the sense आपको कैसे अप्रोच करना है मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको एग्जाम्स में. तो first and foremost you have to always choose योर एथिकल वैल्यूज एंड एथिकल आपका जो एथिकल हाई स्टैंडर्ड जो आपको मेंटेन करना है आपको हमेशा उसमें आपको मेंटेन करना ही है व्हेन यू आर टेकिंग स्टैंड्स और व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. उसके साथ साथ आपको मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना है. यू जस्ट डोंट हैव टू स्टिक टू योर ओन क्वेश्चन जो आप वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है जो आपने अंडरलाइन कर लिया उसके बारे में ही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं है. यू हैव टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव. You have to bring in your own dimensions, your own personal experiences and examples into the case studies as well when you are answering to explain your stand further. Why are you taking this stand and what is this stand exactly refers to and what is the dilemma? Dilemma क्या होता है उसमें आपको एक example के तौर पर भी आप explain कर सकते हो. तो again next third one is to stick to the word limit. तो अगेन केस स्टडीज में आपको हर चीज को देयर आर 3-4 क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द 4 क्वेश्चंस. तो आपको वैल्यू ऑप्शंस अब एवेल्युएट करने के लिए बता दिया तो 3 पेज वही लिख दिया और 3 क्वेश्चन को आपने एक पेज में कवर कर लिया. तो यू कैन नॉट डू दैट. तो यू हैव टू स्टिक टू वर्ड लिमिट फॉर ईच एंड एवरी सेपरेट क्वेश्चंस इन केस स्टडीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And also one more thing which I always suggest aspirants to do when it comes to approaching case studies in the examination is कि आप पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए. नीचे 3-4 क्वेश्चन जो क्या रहती है तो उसमें लिखा रहता है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास एंड लीगल डायलेमास, what are the steps to be taken. So and again some point के बारे में they would have asked कि what are the initiative government has already taken about that. ऐसे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ लीजिए पहले. You read that first, then you go for the question. Then you go into when you go to question later. So your mind and eyes will automatically focus on things which are required to answer this question. So you can just underline and you can just round it off those words and those important topics. So उसको आप underline करते हुए आप then you can focus on the important things. और इस क्या होता है आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, then these 4 क्वेश्चन पढ़ते हो, then again you will go back to the question, then again you will read it, then you will underline कि what is important. उससे बेटर कि पहले 4 क्वेश्चन देख लेना फिर ऊपर जाओ, फिर you go through it and if you want more this one time so you take it and again you go back and you read it. So this is one thing which you can do to manage your time. तो इसके साथ what are the keywords we can use for case studies? Again one wise thing which you can do for this paper तो जो हमने अपने बुक में भी किया है. तो यू प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्या है कीवर्ड्स. तो इन ऑल ईच एंड एवरी चैप्टर हमने क्या किया है अपने ईच एंड एवरी चैप्टर के एंड में हमने 10-15 ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दैट चैप्टर. जैसे ग्लॉसरी करके वी हैव गिवन अ सेक्शन. तो ईच एंड एवरी सेक्शन में वी हैव गिवन द एथिकल कीवर्ड्स which you have to use in the exam. मे बी पार्ट ए और पार्ट बी केस स्टडीज में है या पार्ट बी ए में आपको जो यूज करना ही है. तो आप अगर आप कहना चाहते हो कंपैशन के, अगर आप एफिशिएंसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो, आप एक सेंटेंस 2 सेंटेंस लिख रहे हो टू टेल दैट कि यू हैव टू मैनेज दिस फंड्स एफिशिएंटली, आपका पॉइंट ये है. तो यू हैव टू यू कैन जस्ट राइट दैट यू कैन ब्रिंग इन एफिशिएंसी इन पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन. ऐसे 3-4 वर्ड्स लिखने से आपका 2-3 लाइन आपका बचा सकते हो. तो एथिकल टर्म्स आर सच दैट कि आपको कम से कम 200 कम से कम मान लो 150 to 200 ethical terms आपको नोट डाउन करना है. You have to know the meaning of that. You can use these keywords in part A and part B as well. And the more you use ethical terminologies, substituting your sentences, the more you will get marks. This is very important for both part A and part B. Correct. Next one is how can we interlink the different topics of ethics with each other while writing the answers, and how do we correctly identify the demand of the question, as I often find it difficult to understand the exact meaning and what the question is truly asking for. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एथिक्स बेस्ड नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग बेस्ड है. तो इन आवर प्रीवियस बुक अबाउट आंसर राइटिंग इन द आंसर राइटिंग मैनुअल हमने इन चीज़ों पे टच किया है, इन चीज़ों पे ही बात की है. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के हमें समझना है कि द क्वेश्चन हैज वन थिंग विच इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन. तो बैकग्राउंड क्या है कि जो ओवरऑल टॉपिक बैकग्राउंड है जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है.
बट आंसर हमें बैकग्राउंड के बारे में नहीं लिखना है, आंसर हमें फोकस पॉइंट के बारे में लिखना है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग एज आई ऑलवेज से कि प्रैक्टिस से बहुत अच्छा इंप्रूव होती है। कई बार हमें लगता है स्टार्टर्स ब्लॉक रहता है, राइटर्स ब्लॉक रहता है कि हम शुरू कैसे करें, क्यों लिखें, हमें तो इतना आता ही नहीं है। बट बस्ट ऑल दोज मिथ्स एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। धीरे धीरे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, इसमें जो क्वेश्चन कीवर्ड है जैसे एग्जामिन हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, डिस्क्राइब हो गया, वो कैसे डिफरेंटली हम यूज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का फोकस पॉइंट क्या है, क्या मल्टीपल डायमेंशन हैं जो हम इसमें ला सकते हैं, क्या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डायमेंशन है वो भी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज पॉजिटिव ही लिखना है, कुछ एक नेगेटिव डायमेंशन अगर रियलिटी में हो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और फाइनली इसको कंक्लूड कैसे करें। तो आंसर राइटिंग आप अब जैसे जैसे समझेंगे और सब्जेक्टिव नॉलेज आपको उसका है, तो you will be able to address all these things that are being talked about. Next, Arjun, about examples. How can we find the best examples to use in our answers, and how do we learn to add the right example in the right place in the question? And they have also written, I have noticed that some people are able to include at least one example in almost every answer. How do they manage to do it? So, not some people, all of them write one example, and you have to write one example with all the explanations. So, how can we find the best example to use in our answer? How do we learn to add the right example at the right place? So, as I told कि आपको एक ethical perspective आपको develop करना है when you are viewing the word or when you're reading about something or current affairs. जब भी आपने जैसे हम beginning से बता रहे थे कि आप जब current affairs पढ़ रहे हो या कुछ चीजें देख रहे हो, आपकी चीजें आसपास में जो हो रही है, आपको एक ethical perspective develop करना है उसको देखने में। तो जैसे आप कहीं पे आप जस्ट मैं अभी खुद अभी कुछ डेवलप मतलब इफ आई हैव टू डेवलप अबाउट समथिंग अबाउट कंपैशन, तो कंपैशन के बारे में अगर मुझे सोचना है तो मैं इजीली मैं लिख सकता हूँ कि आई नो ना ऑफिसर हमारा जूनियर ही है, तो आई दिस इज देयर इन माय माइंड ऑलरेडी। तो उसने क्या किया था, ही वाज गोइंग इन हिज फॉर हिज ऑफिशियल ड्यूटी, कहीं पे जा रहा था, वहां पे ही फाउंड डॉग विच वाज उसका जो है फ्रैक्चर हुआ था, शी वाज लिंपिंग, तो छोटा सा पप्पी था, शी वाज लिंपिंग, तो ही टुक हर टू द डॉक्टर, ही गॉट हर मतलब इनिशियल आपका बेसिक आपका ट्रीटमेंट करा दिया, एंड ही फाउंड आउट दैट she cannot recover completely and she will be limping throughout her this one. Then he adopted her and then he brought the dog home. Now he has her in his house, he has named her Neela as well. तो एक एग्जाम्पल कंपैशन हो गया, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके बारे में ऐसे देखा है, तो मैं तुरंत लिख लूंगा। दिस इज वेरी जेन्युइन एग्जाम्पल विच नोबडी एल्स कैन राइट। तो एंड द एग्जामिनर कैन इजीली कनेक्ट विथ यू, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एंड इजीली उनको पता चलेगा कि भाई ये समथिंग विच यू हैव कम अप अक्रॉस मतलब आउट ऑफ योर ओन, एंड दिस इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी फ्रेश एग्जाम्पल विच यू हैव कम अप out of your own, and this will fetch more marks, and this will give a lot of positive feelings about your answer to the examiner. So हमेशा you have to develop your own examples and try to, नहीं तो आपने जैसे as I told you have 100-150 ethical terminologies you will note down. To note down one or two examples for each and every topic. So this also you can do it as a preparation from preparation perspective. जहाँ पे आपको बैठ के पढ़ने के समय में you will get a lot of time to think. Then you can think of some example. You reduce it to 2-3 lines, shorten it so that you can write in the exam. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. So I think we were able to discuss the paper, the trends of the paper, and we were able to, I think, read through all of the questions of the ethics of this year. We also took some of your questions at the end of the session, and we also discussed how our book can help you in mastering ethics and attempting the paper in a well manner. I'm very happy to share कि हमारी बुक ethics जो है, ethics integrity and aptitude, the manual on ethics integrity and aptitude, अब हिंदी में भी available है, and all those aspirants who are preparing in हिंदी आप इसका लाभ ले सकते हैं, and आपको एक quality material ethics के लिए मिलेगा. Even state service examinations में भी आपको ये यूज हो सकता है. बहुत जल्द मराठीमध्ये पण ही पुस्तक येणार आहे, आणि जे पण ऍस्पिरंट्स महाराष्ट्रामध्ये मराठीत अभ्यास करतात त्यांच्याकरता एक खूप छान एक सुविधा होणार आहे. तर आय एम हॅपी दॅट वी आर एबल टू शेअर द बुक इन ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಬುಕ್ ನಾವು ಇದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಬುಕ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರ್ಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಕಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ in both Marathi and Kannada to help the aspirants who are from Maharashtra and Karnataka as well. Yes. So for the other states also we have brought it in Hindi. So we have completely translated. So it's not a Google translation. Each and every line has been translated from the examination perspective. वो आपको जो हिंदी में जो पढ़ रहा है हिंदी में आप लिखेंगे तो, और सिर्फ ये यूपीएससी के लिए नहीं, आपका स्टेट सर्विस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एंड यही एक सब्जेक्ट है जो आपका रैंक और आपका जो आउट ऑफ दी लिस्ट में जो डिसाइड करने वाले में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एक तो एथिक्स है और दूसरा आपका ऐसे पेपर है. तो हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत आप करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा, और साथ में यू हैव टू आपका इस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस भी करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स भी करना पड़ेगा, खुद बैठ के इसमें बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पेपर में आप अच्छा कर पाओगे. And we hope that you all benefited out of this session, and all the best for coming years. Though we are coming years who are taking up this exam, so all the best for you all. So definitely let us know the feedback about our book. Also you can directly text us to thank you. And yes, thank you so much all of you for joining this session. I hope we both hope that it was helpful to all of you, and we would keep joining in such further sessions as and when we get time with all of you. Thank you so much to our publisher as well, Wiley, for the book. And again, happy Teachers Day to everyone. Yes, happy Teachers Day to all our teachers. So sabhi you would have, you are all here because of some of the other teachers. So happy Teachers Day everyone. Thank you. Thank you so much.